We started with this much. Okay, we just talked about what we are going to cover. Basically, we'll look at operation strategies in terms of multiple facilities. We'll talk about factors affecting the facility location in terms of domestic and international, how these factors differ, the methods that we use for identifying a suitable location for our factory or for any facility. And when we talk about facility, that facility can be anything, okay, anything which actually facilitates our objective achievement, correct? So, Yes, sir. Yes, sir. three methods are what we are. There are three methods which we are four methods which we are going to look at. One is a break-even analysis, okay, factor rating method, center of gravity, which is also known as centroid method. Okay, in some of the books it is referred to as centroid method. In one of the book I came across, it was referred to as grid method. Okay, anyway, we'll come. Majority of the times what you will observe is center of gravity method is only just to use to get a rough estimate, but after that, identifying a suitable location, we basically go for factor rating method. This we have already seen yesterday. What is a facility? Facility is a building or a place that provides a particular service or is used for a particular industry. That was the outcome of our discussion, correct? Anything which facilitates, the third point, which actually talks about any object or a resource which facilitates or assists the production of a product or servicing of a customer is called as a facility. Are we clear with the term facility? Yes, sir. Clear. Okay. Any doubts at that juncture? No, sir. Not at all. No, sir. Not yet, Great. sir. So we'll just move ahead with what do we understand by facility location and why do we need to go for it. So when we talk about facility location, means locating or setting up a facility at the right place. Now, how do we define that right place? Right place can be defined based on your costs, whether you are able to support your operations in terms of cost. Second, are you effective in terms of customer service? Okay, that means are you able to satisfy your customers? When we talk about satisfying your customers or servicing your customer, it is in terms of the speed at which you connect to them, and are you able to offer them products at a reasonable cost. And when we say reasonable, that means it is not reasonable according to us, it should be reasonable according to them. It should be preferred by them. Okay. There basically two imperatives are actually looked at. You always prefer to operate as close to the customer as possible, because that way you will be able to be quick enough to service the demand of the market. When you say servicing the demand in a quick fashion means, Abhi, when we look at this corona thing, okay, a lot of things happened. All of a sudden there was a lockdown. All of a sudden there was a peak which got created for some of the products, and for some of the products there were no takers. For example, आपका जो ऑटोमोबाइल पेंट्स वगैरह का था, ऑटोमोबाइल्स भी बिकना बंद हो गई, एकदम से हार्ट पे थी. ऑटोमोबाइल्स बिकना बंद हो गया, ऑटोमोबाइल्स का सर्विसिंग बंद हो गया, करेक्ट. ऑटोमोबाइल्स रोड पे इतना ज्यादा घूम भी नहीं रहते, तो एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं, उनका सर्विसिंग और रिपेयरिंग वो सब पूरा बंद, करेक्ट. सो उसकी वजह से जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, जैसे कि ऑटोमोबाइल पेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज है, दे ऑल केम टू अ स्टैंड स्टिल.
Hello? Yes, sir. Right. Okay. Yes, sir. I was just checking whether I'm still connected or not. No, sir, you are right. So what is happening is those companies came to a standstill. That means the demand for their product basically became zero all of a sudden. And demand for sanitizers went up drastically. Correct? अब ये पूरा गेम डिमांड सप्लाई का होता है. मार्केट में कितना डिमांड है उस हिसाब से, और सप्लाई अगर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ज्यादा हो जाती है. अगर डिमांड है और सप्लाई भी ज्यादा है तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाती है. करेक्ट? Yes, और sir. अगर बहुत ज्यादा मतलब सप्लाई है और डिमांड कम है तो फिर डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ जाते हैं. ठीक है? सो इट बिकम्स एक्चुअली पूरा गेम जो है वो डिमांड सप्लाई का ही है. फाइन. नाउ one is to be able to identify the changes in the demand, and you should be able to tweak your operations accordingly. अगर मार्केट में डिमांड एक अचानक बंद हो गया तो मेरे को मेरा प्रोडक्शन भी बंद कर देना चाहिए. अगर डिमांड ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया तो आई शुड बी एबल टू स्केल अप माय प्रोडक्शन आल्सो सो दैट आई एम एबल टू cater to the rising demand. So that is one of the reasons why you want to be close to the customer. Now there are multiple ways. One is being physically close to the customer. That means your factory is set up close to the market. Second is continuously being updated with what is going on in the mind of the customer. Okay, so aajkal that is one of the reasons why you will see that majority of the companies are having a social media presence also, because they want to get a feel of Sir, Hello? Aditya, you're audible, but Okay, sir. hello. sir, you were not audible in between. I just want to share one of the short discussions, okay, with one of my student who is working with a organized retail store, and he is looking after e-commerce nowadays. So वहां पर वो लोग इवन ये भी चेक करते हैं कि आजकल कस्टमर सर्च क्या कर रहा है, व्हाट आर द कीवर्ड्स दे आर यूजिंग. अगर उसको आईफोन खरीदने का है तो वो आईफोन बोल रहा है, मोबाइल फोन बोल रहा है. व्हाट इज इट द मोस्ट वाइडली यूज्ड कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स के हिसाब से दे गो इन फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सो दैट देयर पेज, वेब पेज appears the first. Okay, अभी एक तरह से देखा जाए तो ये तो मार्केटिंग वाला पार्ट हो गया, बट एक्चुअली में इट्स अबाउट बिजनेस ऑपरेशंस. ओके, आपका अगर पेज ई कॉमर्स इसके लिए अगर आपका पेजेस ही अपीयर नहीं करेगा तो एनीवे वो सेल तो बाद में की बात है. सो फर्स्ट थिंग इज वेब पेजेस शुड अपीयर इन द फर्स्ट पेज. So उस हिसाब से you need to keep on tracking what customer is actually looking for. Okay. Second thing is you should be as close to the raw material supplier, okay, to your inventory. At the same time, the skilled and unskilled labor pool. When we say skilled and unskilled, अभी आप एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जितने भी जो रिटेल चेन्स वगैरह जो है, ओके, उसमें हायर पोजीशन में यू विल ऑलवेज फाइंड स्किल्ड और टैलेंटेड पीपल, और लोअर इसमें वो लोग, वो गांव वाले लोगों तक को जो मतलब 10वीं 12वीं पास है या 10वीं 12वीं पास नहीं भी है तो भी चलेगा. क्यों? They will be there as an attendant. They will be there only just to help
the customer. Correct? आप देख रहे हो किस तरह का ट्रेंड है पूरा एकदम से. एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट होता है, बट एम्प्लॉयमेंट किसके लिए जनरेट होता है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. ओके, अभी उसमें भी देखा जाए तो कई जगह पर जहां पर आप रोबोट्स वगैरह अप्लाई कर देते हो, वहां पर तो इवन मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग के भी काम खत्म हो जाते हैं. सो जो पहले आप सिर्फ वो हमाल बोलते हैं ना, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड हमाल. हाँ सर, समझ Yes, sir. यस. हाँ, तो वो लोगों का भी काम एक तरह से देखा जाए तो कट डाउन हो जाता है, बट स्टिल उनका काम फिर भी कई जगह पर स्टिल बना रहता है, क्योंकि आज भी अगर इफ यू लुक एट, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एंड व्हेन वी से अप्लाइंग रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, yeah, it's expensive and everybody cannot afford it. There are a lot of medium and small enterprises who are still operating manually. तो वहां पर उन लोगों को लेबर पूल्स, उनका काफी काम लेबर इंटेंसिव होता है. So being close to the labor pool is more important. Now there are multiple ways how they arrange this. One is वो लेबर मार्केट आपको पता है क्या? आपने देखा है लेबर मार्केट? सर लेबर मार्केट इन द सेंस मतलब किस चीज में? यस, बोलिए. सर कौन सा लेबर मार्केट? हाँ, कौन सा लेबर मार्केट? वो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, दिहाड़ी. दिहाड़ी मीन्स डेली वेजेस. अच्छा. जो चौक में रहता है ना कहीं पे भी. हाँ, परफेक्ट. नॉर्मली चौक वगैरह के आसपास में या ऐसे कुछ एक प्रोमिनेंट लोकेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको देखने को मिलेगा. और सिटी के अभी आजकल वो इवन दूसरी जगह पर भी मिल जाते हैं. ठीक है, विलेजेस वगैरह के इधर पर भी आप एक को बोलो, वो अपने आप 4 लोगों को लाके खड़ा करता है. सो यहाँ पर जो आपको रेगुलर लेबर्स रहते हैं वो लगते हैं. अभी ये काफी कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह के लिए काम में लाए जाते हैं. दूसरा होता है कि बकायदा ये रहते हैं लेबर सुपर, you cannot call them as just supervisor, but they are labor suppliers. Labor suppliers. उनको आप वेंडर्स जैसे आप बोल सकते हो. You have a contract with them and you just tell them कि मेरे को ये स्किल्स के ये इतने लेबर्स ये पर्टिकुलर डे को लगेंगे, and they arrange it for them for you. Okay. वो आपको कुछ उधर पर जाकर के ढूंढने का कुछ नहीं करने का. All you need to do is just negotiate the rate, have a contract in place and just go ahead. Okay. So Yes, sir. ये there is one more factor which we talk about is the technology. अब टेक्नोलॉजी में one of our part-time students, okay, he is working with an IT company who provides automation solutions. वो लोगों को भी, since they have to service their customer immediately, कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ भी ऐसा कुछ रहता है, so either they station one of their employees close by or in the factory itself, or they set up a office close by, और वहां पर से वो ऑपरेट करते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है तो immediately that person rushes to the site. Okay. So इस तरह की चीजें हैं. मतलब अब अगर आईटी की भी बात करो तो आईटी में भी अभी आजकल there is a concept of onshoring, offshoring. Okay. तो जिसमें आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, तो they do offshore the projects also. Anyway, so your objective of facility location is only just to maximize your operating economy and ensure effectiveness. Correct? Facility planning is primarily done to reduce the cost of production and maximize the utilization of your resources like manpower, machinery, raw materials and others. I believe इधर पर कुछ
एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, करेक्ट? Yes, sir. एनी Yes, sir. डाउट्स, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? सर मुझे वो एक्चुअली आपने पहले जो डिमांड एंड सप्लाई का पूछा था कि मतलब कोविड में जो सैनिटाइजर्स का डिमांड एकदम बढ़ गया था, तो बहुत सारी हाँ फैक्ट्रीज जो सैनिटाइजर्स बनाती नहीं थी उन लोगों ने भी प्रोडक्शन चालू कर दिया, चाहे सैनिटाइजर्स हो हाँ या पीपी की। सर वो उसके लिए मतलब उनको कुछ मशीनरी या उनके जो प्रोसेस में कुछ चेंज करना पड़ता है या मतलब जो सेम प्रोसेस थे वो हो जाता है, मतलब वो मुझे पता नहीं। हाँ आपने ऑब्जर्व किया कौन सी कंपनीज हैं जो सैनिटाइजर बनाने लगी? मतलब जो पहले बनाती नहीं थी ऐसा पूछ लो। हाँ अभी, हाँ बोलिए। नहीं सर, एग्जैक्टली नाम तो पता नहीं। ठीक है, अब उनको अगर मैं भी नाम से मेरे को मतलब ही नहीं है। आप देखिए ज्यादातर कंपनीज तो उस तरह की थी जो केमिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड थी, या फार्मासिस्ट थे, या फार्मेसी वाले थे। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग बैच प्रोडक्शन जैसे रहता है और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी फ्लेक्सिबल रहता है, इट वाज इजी फॉर देम टू पिक इट अप, क्योंकि सेम इक्विपमेंट चाहिए, सिर्फ रॉ मटेरियल्स बदलने हैं। और उसमें ओके। भी सारे के सारे इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, ओनली जस्ट अ लिमिटेड ऑफ देम। जैसे उसमें एक आध ये रहता है कि आपने कुछ केमिकल्स मिक्स कर लिए, स्टरर हो गया, तो उसमें मिक्सिंग टैंक वगैरह काम में लाए जाते हैं, वैसे स्टोरेज टैंक रह गए, करेक्ट? फिर ओके सर। उसको अगर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है या कुछ टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, तो उस तरह के उन लोग आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखोगे तो ये इक्विपमेंट्स होते ही होते हैं, because they are a part of their manufacturing process. So it was easy for them to switch over. The other industry where I saw was paint industry. मैंने आपको ऑटोमोबाइल पेंट का मैंने बोला, ऑटोमोबाइल पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी इसमें स्विच किया, बट नॉट द बिगर ब्रांड्स बट द OEMs. बिगर ब्रांड्स के पास में they had deep pockets to still survive, whereas OEMs didn't. Okay, तो उन लोगों को भी स्विच करना पड़ा. These are basically directly from my personal experience. मतलब मेरे जो friends वगैरह हैं who are into this from there. ओके सर, समझ गया सर। Okay. Yes, sir. So Thank you. वो लोगों के लिए इजी था, वो लोगों ने किया. इसमें ना एक काफी अच्छा एग्जाम्पल था जो मतलब CSR पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ये है. एक सेकेंड ना, जस्ट होल्ड. हेलो, हाँ हेलो, am I audible? Yes sir, you're audible. Yes, sir. So what I was saying, I just lost the track. सर वो एक CSR के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ, CSR के बारे में. So वहां पर ना जो ऐसे जंगली प्लांट्स वगैरह रहते हैं, उसमें से जंगली भी नहीं बोल सकते हैं, वो महुआ एक रहता है, विच इज थोड़ा सा मतलब खाने के बाद में नशा आता है. दैट वाज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर नेचुरल सैनिटाइजर. ओके सर। बट चीज क्या है कि मतलब वो क्या आप लोकली वैसे भी बना सकते हो, बट फिर उसमें कमर्शियल बेनिफिट नहीं है ना, पैसे बहुत ज्यादा नहीं कमा पाएंगे. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो जानबूझ करके बस उस तरह से बनाए जाते हैं ताकि
और कुछ प्रोडक्ट्स को ऑब्सोलीट भी कर दिया जाता है। एग्जांपल इज आपका पहले का जो टीवी होता था, सीआरटी बेस्ड टीवीज, टेलीविजन्स, वो देयर वाज वन इंस्टेंस व्हेन आई was doing, I think, when I around, I'm talking about say 2004, 2005. Okay, that was the time when I came across one advertisement by Onida. They were offering a guarantee, not even warranty, okay, guarantee of 20 years on their televisions. अब वो बाद में उधर स्टार को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ा कि इट वाज ओनली ऑन द पिक्चर ट्यूब। आपका टीवी अभी 20 साल चलेगा क्या? नहीं सर। नो सर। जो एलसीडी एलईडी पैनल्स हैं वो आपके 5 से 7 साल का उनका लाइफ होता है। ठीक है, किसी का काफी अच्छा चल गया, क्योंकि अगर यूटिलाइजेशन कम है तो उसका काफी अच्छा चल गया तो समझ लो आप 8 साल 10 साल वैसा हिसाब है। ओके, नहीं तो उसमें या तो लाइंस आने लगेगा या ब्लैक स्पॉट्स आने लगेंगे। ओके, सो ये प्रॉब्लम्स है। अब जानबूझ करके सीआरटीज को बंद कर दिए, मतलब उसको एक तरह से देखा जाए तो अभी तो काफी कुछ आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गया है। स्टिल दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बट वेरी लेस इन क्वांटिटी, सो दैट टू दे आर बीइंग इंपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, नॉट हियर इन इंडिया। सो अब आप ये देखिए कि एक्चुअली क्या जाता है, जानबूझ करके कुछ प्रोडक्ट्स को, जैसे नया एलसीडीज वगैरह आ गया तो उसको ज्यादा प्रमोट किया गया, उसके लिए स्लिम है, मतलब वॉल पे माउंट हो जाएगा, वो सब कुछ उन्होंने बताया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका लाइफ सिर्फ इतना ही है। तबकि उनको भी मालूम था। आप भी जो एलईडी बल्ब्स वगैरह लेते हो, दे हैव अ लाइफ ऑफ से 5000 आवर्स, ऐसे कुछ समथिंग कुछ रहता है, और कई बार आप देखोगे उसके पहले वो वर्न आउट हो चुके होते हैं। करेक्ट? यस सर। है चैलेंज कुछ जगहों पर। पीपल हैव गॉन डाउन टू अ डर्टी लेवल। कुछ एडवांटेज आएगा तो कुछ डिसएडवांटेज भी आएगा। एडवांटेज उधर पर क्या है? इट्स स्लिम, इट्स लाइट, इट कैन बी इजीली प्लेस्ड। वहां पर जब पहले हम लोग वो 29 इंच का टीवी उठाना होता था तो फिर बोलते थे एक और आदमी को, भाई तू भी हाथ लगा, अगर गिर गया तो फूट जाएगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। अभी आजकल 29 क्या, इवन 50 इंच का भी टीवी आप वो एलसीडी वाला एक आदमी अकेले खुद भी उठा सकता है। यस सर। यस सर। Lightweight, and there are some which are new, which are coming up, and they are almost just like a film. You can fold them and put it in a round box and carry it anywhere. The total weight, even if it is say 60 inch, 70 inch, 80 inch and so on, still the total weight will be hardly in some grams, not even a kg also. So मॉल्स में यूज होता है ना अभी? क्या? मॉल्स में यूज होता है ना वो वाला टीवी? नहीं, मॉल्स में जो यूज होते हैं वो बकायदा एलईडी टीवीज हैं, और उसमें कैसे, दे आर एक्चुअली मॉड्यूल्स। सो एलईडी मॉड्यूल्स होते हैं, पैनल्स छोटे छोटे से, और उनको सबको ज्वाइन करके एक सिंगल टीवी बना दिया जाता है। मॉल्स में जो आप देखते हो, मॉल्स में और अभी आजकल जो बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ना, इवेंट्स वगैरह, वहां पर भी यू विल सी जो काफी बड़ा सा टीवी रहता है वो यही रहता है। छोटे छोटे पैनल्स होते हैं, मतलब आप ये समझो कि कुछ 2 फीट बाय 2 फीट वाले, या 1.5 बाय 1.5 फीट के, वैसे 1.5 बाय 2, और उनको ज्वाइन कर दिया जाता है एक एरे की तरह,
I hope you understand array. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उस तरह से उसको ज्वाइन करके इंटरलेस करके उसको एक बड़े टीवी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. Okay, sir. Yeah. एक मिनट. हाँ, सो एक्चुअली में वो ट्रू एलईडी टीवी है. हम लोगों के पास में जो होता है वो ट्रू एलईडी टीवी नहीं है. एलसीडी पैनल है विद एलईडी बैकलाइट. Okay. Now, what is the problem when we don't set up at the right place? Okay. हमने गलत जगह पर सेट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा? What all problems do you feel? टाटा नैनो का पता है आपको क्या हाल हुआ? हाँ सर, कॉस्ट बढ़ गया. उन्होंने पहले बताया कि भाई 1 लाख में देंगे, बाद में ये हो गया कि वो भी अभी 2.25 लाख तक पहुंच गए. पहले 1 लाख में उन्होंने स्टार्ट भी किया, बट बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर इट वेंट बियॉन्ड 1 lakh and they landed up at a price point of 1.25 lakhs. फिर बाद में वो और फर्दर प्रॉब्लम हो गई. दे हैड टू रीलोकेट, देन फर्दर कॉस्ट केम अप. वहां पर से फिर वो 1.75 lakhs तक पहुंच गए. Okay, so if you have set up at a wrong place or if your facility location is wrong, the possible solutions are you may have to relocate your facility to a new location. Again, problem is the cost. Relocation cost, वहां पर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेम कॉस्ट में आपको सब चीजें मिलना वो भी एक चैलेंज है. लेबर पूल इज ऑल्सो अ चैलेंज. वेस्ट बंगाल में उधर पर उनके लिए लेबर काफी सस्ता था. अब उतना ही सस्ता लेबर आपको दूसरी जगह पर नहीं मिलता है. ओके. अगर हम इधर पर भी अगर हम देखें, मुंबई में भी अगर आप देखोगे तो सस्ता लेबर नॉर्मली जो यूपी और बिहार के लोग आते हैं ना, वही होते हैं. यस सर. और पहले ये लोग इधर पर ऐसे था कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए इन लोगों ने काफी मराठी किया और बोला कि भाई ये जो यूपी बिहार वाले लोग हैं ये लोग इधर का एक्चुअली ये खा रहे हैं. मतलब क्या बोलते हैं, इधर का जो लोकल लोगों को जो वैकेंसी जो मिलना चाहिए पोजीशंस वो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है. बट मेन प्रॉब्लम वाज द कॉस्ट. इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट. उनको यूपी बिहार से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है उनके कॉस्ट से. अब चीज क्या हो गया, जैसे ही ये कोविड वगैरह का शुरू हुआ, ओके, अ लॉट ऑफ थिंग्स केम टू अ स्टैंड स्टिल. अब ये जो यूपी बिहार वाले लोग जो डेली वेज अर्नर्स थे, दे बेसिकली लॉस्ट देयर जॉब्स. उनको जो डेली जो कमाने का था वो सब पूरा बंद हो गया. सो व्हाट दे डिड, they started migrating back. And now when I was attending a couple of conferences just to understand exactly what is happening in the industry, I realized काफी ट्रांसपोर्टर्स हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है. सो उन लोगों का कॉस्ट वाइज में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया. अब ये लोग चले गए तो अभी जो उनको पहले तो लेबर स्कैर्सिटी हो गई. ओके, all of a sudden you cannot come up with skilled labor. ऊपर से कॉस्ट भी बढ़ गया क्योंकि जब आप डिमांड सप्लाई की मैंने बात किया ना, यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया, डिमांड बढ़ गया, सब ड्राइवर्स क्लीनर्स वगैरह सब निकल गए. तो इन लोगों को फिर वापस प्रॉब्लम शुरू हुआ. देन सम ऑफ द कंपनीज दे स्टार्टेड सेटिंग अप. ओके, उनको फोन करके बुला करके रहने के लिए जगह तक देने तक का काम किया इन लोगों ने. सो
ये जो पॉलिटिकल एजेंडास रहता है वो लोग ये करते हैं, सही में देखा जाए तो वी ऑल नीड ईच अदर। किसी एक के होने नहीं होने से प्रॉब्लम ही होने वाली है। ओके, we all are dependent on each one of them because everybody has some or the other strengths. Yes sir. Okay, so a request is, ये सब लोग जो पॉलिटिशियंस जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं ना, थोड़ा सा केयरफुली सुनो, ओके, एंड नॉट टू गेट कैरीड अवे। Yes, sir. Yes sir. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई महाराष्ट्रियंस को जॉब नहीं मिलना चाहिए या उन लोगों को जॉब नहीं मिलना चाहिए। मेरा बोलना यही है कि बस वी ऑल नीड ईच अदर, विदाउट दैट थिंग्स डोंट वर्क। अभी भी जब आप देखोगे व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, प्रेजेंटेशन भी कर रहे होते हो, तो आप अगर वहां पर ये देखो कि कौन सा बंदा क्या चीज ज्यादा बेटर कर सकता है और उस हिसाब से अगर आप उसको पुट अप करो, यू विल बी एबल टू डू वंडर्स। ओके, अभी खैर एनीवे, आप में से कितने लोग फुटबॉल एक्चुअली फॉलो करते हैं? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? दो ही लोग हैं क्या? बाकी लोग नहीं देखते हैं? क्रिकेट। ओके, लेट्स कम टू क्रिकेट। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? Still, people are slow in basically raising their hands, it seems. इतना ही लोग? बाकी लोग क्रिकेट भी नहीं देखते हैं? Not even 50% of the class? या बाकी लोग लॉग इन करके सो रहे हैं? नहीं सर, नहीं देखते। अब मेरे को एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कितने लोग पत्ते लगाते हैं? ओके, एनीवे, दिवाली के टाइम पे कि कभी? अरे दिवाली के ही टाइम पे। ऐसे तो दिवाली पे के टाइम पर जो लगा करता है वो तो बाकी टाइम भी कर ही लेता होगा। नहीं सर। अच्छा अच्छा, okay. Now what I wanted to tell you is, see, how do you identify that these are the people who are going to be your main bowlers? How do you identify that these are going to be your additional bowlers? How do you set up which person is going to be placed in which location while setting up the fielding? Depending upon the skill and his playing ability. नॉर्मली बाउंड्रीज के उधर पर उन लोगों को डालते हो जिनका रनिंग स्पीड काफी अच्छा है। ये सो जिनकी वो अच्छे फील्डर्स है ना, और पास में आप उन लोगों को लगाते हो हु आर वेरी क्विक, राइट है ना। सो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बैटिंग लाइनअप आल्सो, ओके, आपको पता है कि इमीडिएटली अगर आपके विकेट्स उड़ गए तो प्रॉब्लम है। सो आप क्या करते हो, आप स्टार्टिंग में जो दो बैट्समैन जो लगाते हो उसमें से एक बंदा तो ऐसा होता है जो विकेट पकड़ के बैठेगा और एक बंदे का काम ये रहता है कि धोने का बस। करेक्ट? यस। What is this? These are basically nothing but similar concepts which we are actually taking up from, which we are also applying in case of facility location. So आप वहां पर भी लेबर पूल को ले लो या रिसोर्सेज को ले लो, ऑल द रिसोर्सेज आर एक्चुअली पुट अप अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, उनका क्या स्ट्रेंथ है। ओके, नाउ यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड अ फैसिलिटी एंड यू हैव सेट इट अप। अब बाद में आपको रियलाइज होता है कि भाई ये तो प्रॉब्लम हो गया, ये गलत हो गया। नाउ गलत होने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। वन, you would have not analyzed it properly, or there is a political unrest which has got created now. Okay, government policies have changed. All of a sudden वहां पर पहले भी उनका एक तो टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ था नैनो प्लांट के लिए, तो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उनको प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद में उधर पर जो
फार्मर्स थे, जिन लोगों का लैंड इन लोगों ने एक्वायर किया था, वो फार्मर्स मतलब जो गवर्नमेंट ने करके दिया था, वो फार्मर्स एजिटेशन के लिए आ गए। अब उनको भी भड़काने का काम करने वाले तो ऑपोजिशन वाले ही होते हैं। ओके, जैसे अभी आज कांग्रेस वो इसका किसान बिल के लिए बोल रही है ना, एक टाइम पर उन्होंने ही प्रपोज किया और आज इसके लिए बोल रहे थे। जैसे उन्होंने पहले जीएसटी के लिए प्रपोज किया, तब तब बीजेपी जीएसटी के लिए अपोज कर रही थी। अभी आज जब बीजेपी ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया तो कांग्रेस उसको अपोज कर रही है। तो ये सब ऐसे ही है। Right. So these kind of market forces will always be there. Now, this is how do you manage them? तो उधर पर कुछ हद तक देखा जाए तो वो जो there are multiple ways of doing things. या तो आप अपने आप को पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग रखो या फिर लॉजिकली एकदम स्ट्रांग रखो, दोनों भी तरह से करके करना पड़ेगा, मतलब विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आईएएस के केस में क्या हो जाता है कि बहुत सारे कॉलेज, आपने बहुत सारे कॉलेजेस के काफी बड़े बड़े एड्स वगैरह बहुत कुछ देखे होंगे। आईएएस का आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिला होगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Right. Yes, Now, what is the reason behind? They have a different mindset altogether. आईएएस का वो लोग ऐसा फालतू में किसी को भी ऐसा पैसा नहीं देते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जब गवर्नमेंट बॉडीज से परमिशंस वगैरह के लिए डील करते हैं ना, तब भी 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्राइब। इसके लिए इन लोगों को गवर्नमेंट परमिशंस के लिए भी काफी टाइम लगता है, बट दे मूव स्लोली एंड स्टेडीली। उनके किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में कभी आपने कभी भी एक भी जगह पर ऐसा नेगेटिव नोट में नहीं सुना होगा। Yes, sir. एक सेकंड ना, कोई इडियट है, उसको हॉर्न बजाए पड़ा, उसको मैं जरा एक लेफ्ट राइट देने का मन कर रहा है मेरा। इफ ही हॉन्क्स अगेन आई विल गिव हिम अ गुड शॉट देन। ओके, सॉरी, वेंट बैक। क्या है ना, कुछ लोगों को चर्बी रहती है। अवर्स इज अ रो हाउस काइंड ऑफ बंगलो प्लॉट्स जैसे। सो वो कुछ लोग आएंगे और नीचे से हॉर्न मारेंगे, बट वो उतर करके बेल रिंग नहीं करते हैं। एनीवे, सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि आप उसको उस तरह से चीजें मैनेज करते हो। अब रिलायंस उसको एक अलग तरीके से मैनेज करता है। ओके, रिलायंस उसको क्या करेगा, वो कांग्रेस को भी पैसा देगा, वो बीजेपी को भी डोनेशंस देगा, और दोनों को नियर अबाउट सेम देता है। नियर अबाउट मतलब एकदम सेम तो किसी को भी नहीं देता है। जिसकी पार्टी जीतने वाली है उस हिसाब से एक को ज्यादा एक को कम वैसे करेगा, बट वो हर बार जब भी इलेक्शंस होते हैं दोनों को पैसे देता है। Just imagine the kind of donation that they give, 700-800 crores to one party. कुछ होते हैं ना 700-800 करोड़, और फिर बाद में वो वसूल भी लेते हैं। करेक्ट? Yes, sir. yes, sir. अभी आपको बताता हूँ, अभी इन लोगों ने क्या किया था, जब वो सीडीएमए का भी लाइसेंस वगैरह का रिलीज होना का था ना, तो वो टाइम पर आज उन लोगों को परमिशन आज शाम को मिल रही है, दूसरे दिन उन लोगों का आउटलेट्स वगैरह में सब चालू भी हो गया। इसका मतलब दे वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ कि उनको कब परमिशन मिल रहा है, एंड दे डिड ऑल द बैकग्राउंड वर्क, दे केप्ट एवरीथिंग रेडी। द मिनट दे गॉट द परमिशन, नेक्स्ट डे सब चालू, बुकिंग्स विकिंग्स सब लेना शुरू कर दिया था। एंड दैट वाज द टाइम बिकॉज ऑफ विच द मोबाइल फोन रेट्स केम डाउन ड्रास्टिकली। तब वो लोग 500 रुपए में लोगों को मोबाइल बांट रहे थे। सो बहुत सस्ता था। हाँ हाँ यार, 500 रुपए में हैंडसेट के साथ में दे रहे थे। यूज करने का, और फिर कुछ समय बाद में ऑलमोस्ट सेम टेक्निक, अभी 1-2 महीना फ्री, फिर उसके बाद में आपको चार्जेस लगेगा।
बट आप उससे पोर्ट आउट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे उस वक्त। पोर्ट इन पोर्ट आउट वाला हिसाब ही नहीं था, आपको सेम नंबर कंटिन्यू करना ही है। एंड दे केम अप विथ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम। उस वक्त क्या होता था, रोमिंग लगता था। आप अगर अपने सर्कल से कहीं बाहर जाते थे ना, तो आपका जो रोमिंग चार्जेस है जबरदस्त बढ़ जाता था। तो उन्होंने अपने खुद के टावर सेटअप कर रखे थे। तो जब कोई बंदा रोमिंग पे दूसरे उसमें जाता था तो उसका नंबर बदल जाता था, लोकल उधर का लोकल नंबर हो जाता था। एंड उसको लोकल चार्जेस ही लग रहे थे पैन इंडिया। सबकी पहले सब कंपनीज वगैरह उसी बात का बराबर फायदा उठा रहे थे, कमा रहे थे जम के। रिलायंस ने उधर पे देखा वो किस चीज को लेवरेज कर सकता है, उन्होंने लेवरेज किया। उन्होंने ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि गलत वाला हिसाब था, बट दे जस्ट आइडेंटिफाइड लूप होल्स विद इन द सिस्टम एंड टुक एडवांटेज ऑफ इट। ओके, एंड दे केप्ट ऑन डूइंग द सेम इवन नाउ। सो अलग ही हिसाब है। सो वहां पर वो जहां भी सेटअप करेगा उसको भी करेक्ट कर लेगा, उसका एक अलग हिसाब है। बट टाटास were not able to manage it, so they were left out with no choice other than to move out of West Bengal. Okay, so you are left out with choices like either you continue the operation at the same existing location, but if you are continuing operation, that means you are losing money. You are not competitive as compared to your customers. So वहां पर भी कुछ समय बाद में या तो आपको बंद करना पड़ेगा या आपको ऑप्टिमाइज करके रीलोकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, या कुछ नया टेक्नोलॉजी ले आए जिसकी वजह से यू आर एबल टू कट डाउन योर कॉस्ट ड्रास्टिकली। other thing is you sell off your facility to some other company. Now selling off is basically a very is the last proposition इसलिए क्योंकि यार आप जैसे आज अगर मान लो मैंने आज होंडा सिटी खरीदा, 13 लाख में मैंने खरीदा, 4 दिन बाद में मैं बेचने जाता हूँ, am I going to get 13 lakhs again? No sir. No sir. Cost होगा ही. So within 4 days the cost will go down. Now if I ask you guys कि बस मैं मेरा होंडा सिटी बेच रहा हूँ, 13 लाख का था, हाँ, आप लोग कितने में खरीदोगे? What is the maximum that you are able to pay me? 12,50,000. How much? 12,50,000. 12,50,000. तो 50,000 तो फट करके ही कट डाउन हो गया। अब नॉर्मली आप 12,50,000 के लिए भी नहीं जाओगे, क्योंकि अभी चीज ये है जब आप उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने जाओगे तो उसके चार्जेस वगैरह लग जाएंगे, तो 13 लाख का ही पड़ेगा। तो 13 लाख का जब पड़ेगा तो आप नया ही खरीदोगे ना, सेकंड हैंड। एंड सर शोरूम से निकलने के बाद डायरेक्टली 25% गिर ही जाता है। सॉरी, शोरूम से निकलने का सर वैल्यू गाड़ी का 25% गिर ही जाता है वैसे भी विद इन द फर्स्ट ईयर। हाँ, तो वही बात है कि immediately, and this is not only just for a car but it happens for all the other assets too. जब मुझे बेचना है तब मेरे को रेट कम मिलेगा, बट मुझे खरीदना है तब रेट ऊपर रहेगा। ओके, सो ये नॉर्मल रूल है। सो either you will have to wait for the right customer to arrive and then you will be able to get the right cost for it, या फिर जितना टाइम आप वेट करोगे उतना टाइम तक वो एसेट एज इट इज पड़ा रहेगा। इट विल बेसिकली बर्न आउट, वो उल्टा और डिटेरियोरेट होता जाएगा। इट विल बी become a waste completely. Okay, so selling off is also a last proposition when you go in for. Again, when you are selling it off, relocate कर रहे हो, तो जो आपका लेबर पूल होता है या स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, वो साथ में रिलोकेट कुछ पार्ट हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। अभी जैसे आप लोगों को बोला जाए कि भाई आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ मुंबई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एट द, अभी आपको तो नया कंडीशन, मार्केट कंडीशंस पता ही है, तो स्टिल विल यू बी एक्सेप्टिंग आउट ऑफ मुंबई, दैट मींस रिलोकेशन opportunities? Are you going to take it up? Definitely. How many of you will be interested in taking up outside Mumbai or outside your
residential city. One. What about others? Okay. It's like if salaries and all is good, then we will relocate. Okay. मुंबई सबसे एक्सपेंसिव सिटी मुंबई ही है, करेक्ट? Yes, sir. अब इसके बाहर अगर जाएगा, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द सेम सैलरी? सर सेम सैलरी नहीं भी होगा तो थोड़ा कम भी होगा तो सर एटलीस्ट एक्सपेंसेस थोड़े सेव होंगे एंड यू नो दैट दे कैन बी अ लिटिल सेट ऑफ. एक्सपेंसेस कम होंगे या इंटर्न एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे? सर व्हाट आई मेंट टू से वाज कि जैसे सर बॉम्बे में ट्रैवल एक्सपेंसेस आर एक्सॉर्बिटेंट. अगर फॉर एग्जांपल इफ आई मूव टू पुणे और से बैंगलोर सो ऑब्वियसली थोड़ा तो फर्क आएगा ना सर. Correct. Now, can you see the apprehension in moving out? Though we are staying in a city which is the most expensive city. Okay. So, अब आप देखिए, जब अगर मुझे मेरी फैक्ट्री रिलोकेट करनी है, तो क्या मेरे एम्प्लॉइज मेरे साथ मूव करेंगे? This Not necessary, sir. to a point Sir, not that I necessary. will have to reappoint people at a different location. अब मुझे वहां पर सेम लेबर पूल और सेम क्वालिटी का लेबर मिलना चाहिए, करेक्ट ना? राइट सर. तो आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है मूव कर लोगे, व्हाट अबाउट योर लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर? वो तो मूव नहीं कर पाएंगे ना. No, sir. So ये challenges हैं if you talk about a wrong facility location. So we cannot afford to have a facility located at a wrong place. आपने देखा होगा आपके घर के आसपास में कुछ एक आध शॉप्स वगैरह चालू हुई होगी और 2-3 महीने में ही फिर बंद भी हो गई. हाँ देखा है सर. मतलब उनका धंधा ही नहीं हो पा रहा था. अब उधर पर Yes, उनका sir. बिजनेस नहीं होने का रीजंस क्या हो सकता है? सर गलत जगह पे एरिया को, गलत एरिया में शॉप खोला. गलत मतलब एरिया without- में शॉप. वेरी हाँ. गुड. अब इसमें ना लोग कई बार ना और भी कई अलग अलग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं. वन ऑफ द स्ट्रैटेजी इज बेसिकली aligning yourself or setting up yourself into a clustered area. Clustered area means जैसे अभी कुछ कुछ एरियाज होते हैं, दे आर स्पेसिफिकली नोन फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट. जैसे आप फैशन स्ट्रीट चले गए, फैशन स्ट्रीट इज नोन फॉर क्लोथ्स, ठीक है, रेगुलर वियर और वैसे सब, बराबर ना? बट पार्टी वियर के लिए Yes, आप sir. फैशन स्ट्रीट नहीं जाते हो. उसके लिए फिर किधर जाते हैं? वेडिंग शॉपिंग वगैरह के लिए उसके लिए किधर जाते हैं? सर जो प्रॉपर शॉप्स रहते हैं उस पर्टिकुलर क्लोथ्स के लिए वहाँ पे. Sir, near Kalba Dev. नॉर्मली कालबा मुंबई देवी. में दो ही जगह जाते हैं, या तो अपना दादर में, करेक्ट, स्टेशन के पास में कुछ शॉप्स हैं विच आर स्पेसिफिकली फॉर दिस, ओके, या फिर हिंद माता, सॉरी हिंद माता. दादर हिंद माता. हाँ, दादर हिंद माता. और हिंद माता के अलावा वहां पर और भी कई शॉप्स हैं आजू बाजू में भी, अगर आप देखोगे. सो इट्स अ क्लस्टर. बट वहां पर आप देखिए ज्यादातर शॉप्स जो आजू बाजू में जो आप देखोगे वो सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है. इफ यू गो टू कालबा देवी, लोहार चाल, पूरा का पूरा लोहार, मतलब वो मेटल आइटम्स वही सब चीजें, मतलब आपका टूल्स वही सब चीजें उधर पर मिलती है. वहां पर एक और एरिया है विच इज स्पेसिफिकली फॉर दिस मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. फिर आपका क्रॉफर्ड मार्केट हो गया, वो रिटेल वाला सब सामान के लिए हो गया. मनीष मार्केट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो गया, करेक्ट. So what are these? These are actually clusters. So that's an another way how you locate yourself. आपको
मान लो कपड़ों से रिलेटेड चालू करने का है, उस हिसाब से आप वहां पर जो नॉन लोकेशन है वहीं पर जाकर सेटअप कर लोगे. डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेटअप वुड बी हाई, बट एट द सेम टाइम ROIs आर better. Correct? Yes, sir. So these are the strategies which you actually adopt. Or the other way is you go and set up yourself into another location, that is this क्या बोलते हैं अपना, जैसे स्पेशलाइज्ड जोन्स हैं, जैसे अपना ठाणे बेलापुर बेल्ट हो गया. It is an industrial area. Okay. Then I hope you guys are aware of SEEPs. Yes, sir. SEEPs हो गया अंधेरी में. फिर वहीं पर MIDC जोन है, वो भी एक एरिया हो गया. करेक्ट? सो यू विल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर दैट. क्लियर? Yes, sir. समझ गया. Is the background voice disturbing you guys? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है. Okay, so I have explained those things here. जो अभी हम लोगों ने पहले जो भी इधर पर पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया ना, all the points have been indicated here. What are the challenges that you face? Okay, for all the 4 strategies, what will be the challenges? So एक नजर मार लीजिए, अगर आपको लगता है तो कुछ पॉइंट है which needs explanation, I will do that, else we'll move ahead. What we'll do is we'll take a break. अपना टाइम भी हो गया है. We'll take a break. Okay, and 10:03. So 10:15. Can we join in? Yes, Or sir. 10? Yes. 10:18, sir. Yes, sir. Okay, done. Let's join back at 10:18.
Hello. Yes, sir. Okay, great. People are back. Can we go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Yes, slide me anything that you would like to like some clarifications or some more explanation anywhere? No, sir. Okay, No, great. sir. Now, why do you go for an additional facility? So, when you are going for an additional facility, the reasons could be you are starting up a new venture, you are expanding an existing business. So, कई बार लोगों को immediately वहीं पर और भी additional land होता है तो वो लोग उसको acquire कर लेते हैं. अगर वो नहीं हुआ तो then they have to find out a bigger place or a additional place. जितना भी आसपास में हो सकेगा उस हिसाब से. And there is a significant change in the existing demand supply and marketing location. Significant change in the cost structure, government policies. ये सब चीजें हम लोगों ने already discuss कर लिया है, correct? Yes, sir. Now, the other aspect which we didn't discuss much is you may require a separate facility because you are venturing into a new product domain. आप कुछ और additional products डाल रहे हो, मतलब बनाने जा रहे हो. अब there is a possibility that your existing setup may not support it or may not be feasible for it. For example, जो Maruti Suzuki, okay, they came up with those new cars. कौन सा? एक तो Baleno था, ठीक है? फिर Ciaz. और कौन सा? Hizashi था और SX4 था सर एंड ग्रैंड विटारा. नहीं मैं SX4 तो मारुति सुजुकी के शोरूम में बिक रहा था ना, वो नेक्सा के अंडर में नहीं आ रहा था. नेक्सा के इसमें एक और छोटा सा एक और कार है ना उनका, Ignis. So they launched all those things under brand name under the brand name Nexa. तो ज्यादा सबका सब वो नेक्सा के उसके अंडर करके आपने देखा उन लोगों ने ज्यादातर जितने भी उनके शोरूम थे, ओके, कुछ कई जगहों पर उन्होंने नए शोरूम्स चालू किए और कुछ जगहों पर उन्होंने उनके जो पुराने शोरूम्स थे उनको ही रिवैम्प किया और उसमें पार्टीशन जैसे करके उसको सेपरेट आउट किया है. ओके, सो नेक्सा has a different look and feel altogether as compared to what their regular showrooms had. Okay, so they wanted it to be put up in a different form. Hence, they had to go in for an additional or a separate facility. When we say additional means adding one more. Separate means separating it out altogether. Okay, so that was one thing. Second is you may require it to serve different geographical areas. जैसे आप कुछ कंपनीज का अगर आप लोगे, एक सेकंड, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग हियर क्लोज बाय. आई विल जस्ट pick it up and I will tell you. Just hold on for a second.
Okay, I was able to find this packaging of Dove soap. Okay, in that it says manufactured by. Read the first characters of the code following 0 कुछ ऐसा कुछ है. Now I need to find out where that code is. It is not clearly visible, but this tells me that there are multiple locations where it is getting manufactured. First code is D, which stands for Hindustan Unilever Limited at Buldhana, Maharashtra. Second is F. Hello, am I audible? Sir, yes, but your slide Yes. is on the additional facility. Are you sharing any another thing also? Sorry? Sir, you are sharing the PPT, na? Or you are sharing the another thing which you are saying right now. D4. I have taken it in my hand, so I cannot show you. Oh, अच्छा, okay. No problem. Okay, so I'm just reading it out. आप लोगों के पास में भी शायद ऐसे काफी सैंपल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा. ओके, ये तो मैं ऐसे जस्ट रैंडमली घर में से अंदर से ही उठा करके लेके आया. Yes, sir. Yes, no problem. Okay, so one was D, which is Hindustan Unilever Limited at Buldhana, Maharashtra. Second is Hindustan Unilever Limited, Barotiwala. This is in Himachal Pradesh, Solan. Okay, then H stands for Lakme Lever Private Limited. Okay, and this is at Padana, Gandhidham, Kutch, गुजरात. So अब आप देखिए यहाँ पर DFH 3 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है. एक महाराष्ट्र है, एक गुजरात है और एक हिमाचल प्रदेश है. What does this says? नॉर्थ में जब उन लोगों को सप्लाई करना है तो वो लोग हिमाचल नॉर्थ और वो ईस्ट की तरफ के लिए मोस्टली हिमाचल में बना करके सब पूरा सप्लाई कर रहे हैं. इधर सेंट्रल लोकेशन के लिए गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को यूज कर रहे हैं. महाराष्ट्र इज मेजरली बीइंग यूज्ड नॉट ओनली जस्ट फॉर महाराष्ट्र एरिया बट आल्सो फॉर द सदर्न रीजन. और ये जितने भी लोकेशन है, सोलन हो गया, ओके, फिर गांधीधाम, पड़ाना, ओके, ये जो लोकेशंस हैं, इवन बुल्धाना, ये MIDC एरिया में है. देखिए, तो दे आर एक्चुअली यूजिंग स्पेसिफिक लोकेशंस स्पेसिफिकली फॉर केटरिंग टू डिफरेंट मार्केट रीजन्स. अभी ये फैक्ट्रीज इन्होंने इस हिसाब से ही सेटअप की है ताकि वो उस पर्टिकुलर रीजन्स को केटर कर सके एट अ लोअर कॉस्ट. आर वी क्लियर? Yes, sir. आप इस तरह से कुछ और प्रोडक्ट्स वगैरह का उठा करके देखिएगा, यू विल कम टू नो. Sure, sir. Okay, going forward, so either the different kind of processing itself, processing requirements are different, so uske liye bhi you go in for a separate facility. Any doubts here? No, sir. Hello? No doubt, sir. Okay, great. The issues that you actually take into consideration, majority of them we have already talked about. Free trade zones. इसमें देखिए, proximity to customers we talked about, suppliers, total cost, infrastructure. Infrastructure में even आप देखोगे तो we talk about road connectivity. Okay, so आप उस हिसाब से भी डिसाइड करते हो. नॉट ओनली जस्ट रोड बट ऑल्सो पोर्ट कनेक्टिविटी. कुछ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होंगे, दे वुड लाइक टू
प्लेस themselves close to the ports, क्योंकि उधर से पोर्ट से शिपिंग के लिए इजी हो जाता है, नहीं तो आपका एडिशनल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी ऐड हो जाता है. Okay, so host community is another factor which we take into consideration. Host community is basically आप ये मान के चलिए कि जो उधर की जो लोकल पब्लिक है वो किस तरह से उस चीज के लिए रेस्पॉन्ड करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई एरिया है जहां पर कि हिंदू सेंटिमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, ओके, वहां पर लेदर प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर आप रखो तो प्रॉब्लम हो जाएगा. लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लेदर प्रोसेसिंग में नॉट हैव अ प्रॉब्लम बट लेदर मैन्युफैक्चरिंग विल हैव अ प्रॉब्लम. ओके, सो वहां पर पीपल में हैव may basically oppose. So आप वो चीजों को भी you will take into consideration. And when we talk about environmental, that is climatic conditions, environmental regulations तो रहते ही हैं, जैसे anti pollution norms. US वगैरह में, US यूरोप में आप देखोगे एंटी पोल्यूशन नॉर्म्स काफी स्ट्रांग है, so they have to be very careful. So इसके लिए for them it was much easier to put themselves into डेवलपिंग कंट्रीज. तो इंडिया वगैरह में भी काफी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता था. आपको शायद पता होगा कि इसका वोकार्ड जो यूएस कंपनी है, वो लोगों ने जब इधर पर आकर के देखा था तो इधर का प्लांट में क्लीनलीनेस नहीं था, तो उसके लिए उन लोगों ने उस पे ये कर दिया था कि इधर पर से हम सामान नहीं खरीदेंगे. सो they have very strong norms, तो उस हिसाब से they do it. फिर बाद में गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा मीडिएट किया और सब सेटल डाउन करवाया था. ओके, फ्री ट्रेड जोन्स आर बेसिकली सीप्स वगैरह जो होते हैं, ओके, दीज आर स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स. तो वहां पर आप कई बार आप देखोगे बहुत सारे टैक्सेस एग्जेम्प्टेड होते हैं उन लोगों को. ऐसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी होते हैं, SEZs. ओके, ट्रेडिंग ब्लॉक्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. सूरत वगैरह ये सब जो हो गया, ये सब एक तरह से ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं स्पेसिफिकली फॉर गारमेंट्स. फिर आपका जेम्स एंड ज्वेलरी, ये दो चीजों के लिए काफी स्ट्रांगली वो काफी पॉपुलर है. Yes, sir. Any other point which is left out here that you want me to explain? Political risk I have already covered. No, sir, all the points are covered. Great. Now, when we start talking about your facility location decision, starts from macro to micro. That means you start looking at from market region point of view, then sub-region, then community, and then you specifically go in for a specific site. So when we talk about market region, you are the things that you the criteria that you actually address are market potential, market share, operating cost. इसमें आप कई बार इवन कॉन्टिनेंटल लेवल पर भी बात करते हो, जैसे एशिया. ओके, सो एशिया काफी डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो भाई अभी US UK यूरोपियन कंपनी है, तो बोले कि भाई अभी मैं उसको एशिया में भी अपना प्रेजेंस सेटअप करना चाहूंगा. ओके, तो एशिया में फिर कहां पर करना है, सो फिर कहां पर में देन यू स्टार्ट लुकिंग एट सब रीजन्स. वहां पर आप इवन लोकल गवर्नमेंट वगैरह के बारे में भी जब देखते हो. अब एशिया में ऐसे देखा जाए तो सबसे अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शंस अगर देखा जाए तो चाइना है. क्यों? क्योंकि उधर पर लेबर कॉस्ट वगैरह काफी कम है. आप लेबर्स वगैरह को काफी दबा करके काफी एक्स्ट्रा मतलब निचोड़ सकते हो, वो वाला भी हिसाब है. उधर पर 8 घंटे का वर्क आवर्स नहीं रहता है, 10-10, 12-12 घंटे का रहता है, तो उस हिसाब से भी चलता है. तो उन लोगों के लिए वो एडवांटेजियस होता है. दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर एबल टू. और बहुत सारे उसमें ये सब नहीं है कि मतलब उनके लेबर्स को भी आपको जैसे इधर पर आपको PF देना होता है, मेडिकल देना होता है, वो सारे चैलेंजेस उधर पर नहीं है. सो
it is more lucrative. Yes. Then you start looking at community and then site. So following are the criteria which you actually take into consideration. जब आप साइट की बात करते हो तब आप कनेक्टिविटी वो सब चीजों के बारे में भी बात करना शुरू करते हो. देन लोकल टैक्सेस ऑल्सो. अभी यहाँ पर अभी लोकल टैक्सेस वाला कंडीशन अभी भी स्टिल है क्योंकि कंप्लीटली जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है. आज भी देयर आर सम प्रोडक्ट कैटेगरीज विच आर एग्जेम्प्टेड आउट ऑफ जीएसटी, जिसमें आज भी पुराना रूल चल रहा है. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, फ्यूल, पेट्रोल डीजल, आज भी उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है. करेक्ट है ना? यस सर, राइट. यस सर. तो ये आप लोगों को इसमें भी जीएसटी में कितना ये है उसका ब्रेकअप पार्ट्स? 5. कुछ आइडिया? 5 सर. 0, 12, 0, 9, 12, 18, 28. स्लैब्स की आप बात कर रहे हो? हाँ सर, राइट. स्लैब्स की बात कर रहा हूँ. 5% वाला है, 12% है, 18% है. करेक्ट? यस सर. बट इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं जीएसटी के? CGST. Have you heard of GST? SGST? Yes sir. IGST? CGST and SGST. हाँ. So these are the components. अभी एक्चुअली में क्या होता है कि CGST is सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, SGST is स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, एंड IGST is इंटर स्टेट, जब वो मूव करता है फ्रॉम वन स्टेट टू एन अनदर स्टेट. ओके. तो आप ये कंपोनेंट्स भी है. आपको ऊपर सिर्फ आपको सिर्फ जीएसटी दिखता है, बट एक्चुअली में व्हेन इट गोज बिलो इट गेट्स ब्रोकन अप. नाउ व्हाई डू वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? क्योंकि पहले क्या होता था कि वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेस. स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेस इज रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब दोनों का रेवेन्यू फिर किसके पास जाएगा? तो सेंट्रल ने बोला कि भाई ठीक है, जीएसटी के हिसाब से उनको करने दो, एंड देन वी विल गिव यू योर शेयर. सो दैट शेयर इज योर SGST. ओके. Yes sir. So this is how you actually go ahead with. इसमें कहीं पर कुछ पूछना है आपको? I have already covered majority of it. Once you have analysis or rather reports catering to all these from macro to micro areas tak, so then it is actually put up to the board of directors and they take a call which facility to actually go in for, which will be more lucrative or which will be more beneficial for them. Yes, Anything sir. that you would like to ask me here? No sir, everything is covered. Is it self-explanatory? Yes sir. Great. Yes. बाकी लोग हैं नहीं क्या क्लास में? Present sir. है ना? Okay. So when we look at the factors, if we want to categorize them based on domestic and international, so the ones listed on this side, on the left hand side, are domestic factors, and when we talk about international, these are the international factors. Some of the factors are the same. For example, when we start talking about the costs, economies of scale, okay, ये आपके इस तरफ भी applicable होते हैं. Fine. Proximity to the market, proximity to raw material, it would be actually applicable on this side also. So your connectivity to your resources becomes important. The additional things which come in here is the trade barriers. अभी ये trade barriers अपने को इधर पर domestic इसमें भी आ जाता है, because we have state governments and some of the state governments have their own separate laws. Okay, तो वहां पर भी problem है, because of which it gets applicable on this front also. But when we
talk about, अभी जैसे we took an example of Walmart entering into India. क्या हुआ था उधर पर? वो डायरेक्ट सीधा एंटर कर ही नहीं सकता था, तो they didn't had a direct access, so they identified different route for it. Okay, उधर के local laws, regulations becomes important. अगर आपको जो आप प्रोसेस वगैरह करने के बाद में जो भी आपका स्लज वगैरह जो भी वेस्ट है, अगर आप फेंकने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, आप एज इट इज फेंक सकते हो, सो आपका काफी कॉस्ट बच जाता है ना। आपको पता है पहले इधर मुंबई में भी ऐसे ही था, लोग डायरेक्ट सीधा डिस्चार्ज कर देते थे प्रोसेस ये, और वो चला जाता था, मतलब वो ये नाले वगैरह बने थे उसके थ्रू, ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू इट यूज्ड टू गो अप टू द सी, और सी में जो सी क्रिएचर्स है सबके लिए प्रॉब्लम होने लग गया, मरीन लाइफ के लिए। सो देन गवर्नमेंट केम अप विथ एंटी पॉल्यूशन नॉर्म्स, और अभी वो लोग डायरेक्ट एज इट इज उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू ट्रीट even the whatever that they are actually discharging out, तो जो भी लिक्विड वगैरह भी रहता है उसको ट्रीट करके पानी के pH लेवल 7 के करीब ला करके then only they can discharge. So उन लोगों ने भी फिर क्या किया कि सब लोगों ने मिल करके एक इधर ठाणे बेलापुर बेल्ट में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया, जहां पर कि सबका सब कंपनीज का डिस्चार्ज वगैरह सब वहां पर आता है, ट्रीट होता है, एंड देन इट इज डिस्चार्ज फॉर द सी रूट। ओके, सो वो लोगों ने एक एसोसिएशन बना करके उस तरह से मैनेज किया। so, सबसे ज्यादा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। यस सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। यस सर। सर ये स्लाइड में एडिशनल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? यहाँ पर ना जब आप Yes, sir. कोई जगह पर जाते हो तो आपको एडिशनल फैसिलिटीज या एडिशनल इसकी जरूरत पड़ती है। एग्जांपल के जैसे मैं आपको बोलूं, हाँ, इंडिया में व्हेन वॉक्सवैगन स्टार्टेड ऑपरेटिंग, ओके, सो वो लोग ना अपने अभी भी लास्ट 1-2 साल पहले तक भी उनका कंडीशन यही था। उन्होंने जब सेटअप किया तो इनिशियली वो लोग पूरा का पूरा इंपोर्ट करना शुरू किए थे, फिर बाद में उन्होंने मॉड्यूल्स जैसे कुछ कुछ इंपोर्ट करना शुरू किया, कुछ पार्ट इधर ही बनाना शुरू कर दिया। ओके, सो इनिशियली आपके पास में वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं होती है, सो दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू एक्चुअली क्रिएट। अब एक और चीज होती है, आप डायरेक्ट लेबर से कई बार आप डायरेक्ट डील नहीं कर पाते हो, सो यू नीड टू गो इन फॉर इंटरमीडियरीज। अभी जैसे व्हेन वी वांटेड टू एक्चुअली अपॉइंट सम सप्लायर्स फ्रॉम चाइना, सो व्हेन वी वेंट देयर तो एक नया प्रॉब्लम सामने आया, वो उनमें से कोई भी इंग्लिश बोलता ही नहीं है। सो द चैलेंज वाज हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। उनको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती है, बोलते भी नहीं है, बट अपना काम तो करने का है। सो वी गॉट कनेक्टेड टू एन एजेंट, ही वाज अ सिंधी भाई, okay, who was settled there since almost last 20-25 years. वो बंदे को सिंधी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उसको चाइनीज भी आती है। Now this was the guy who was facilitating the businesses. He was acting as the intermediary. These are your additional resources which you may require depending upon the local conditions. Am I clear? Yes sir. अभी जैसे मैं अभी एक और चीज, एक और एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे इंडिया में आप जो भी ऑटोमोबाइल्स निकालते हो, यू कैन एक्चुअली पुश आउट ऑटोमोबाइल्स विदाउट एयर बैग्स, करेक्ट? एयर बैग इज अ लग्जरी आइटम in India, but it is a mandatory item in Japan, in US.
यूके, उसके बिना आप कार खरीद नहीं सकते हो, करेक्ट? Yes, sir. That becomes your additional resources. So आपका एक पार्ट जो हम इधर पर कॉस्ट प्ले करने के लिए हमने ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, गेटिंग इट? इट इज एग्जैक्टली लाइक वो मुर्दे को हल्का करने के लिए उसके बाल उखाड़ देने का। एंड द सेफ्टी। बीच में एक आर्टिकल आया था, आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव रेड इट और नॉट, सेफेस्ट व्हीकल इन इंडिया, और जब ये सब टेस्ट वगैरह में किए गए थे तो वो टाइम पर आई थिंक फोर्ड वाज द वन विच सस्टेन्ड, बट तब उन लोगों का फिगो लॉन्च नहीं हुआ था। उसके बाद में फिगो लॉन्च हुआ तो वो भी फिगो भी वैसे ही है, बट ज्यादातर जगह पर वो लोग पतरे को भी पतला कर देंगे, फिर बाद में स्ट्रक्चर वेट उसका कम रहे, इसके लिए कुछ कुछ जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो सब निकाल देते हैं। डोर के अंदर भी ना एक क्रॉस बार होता है जो लगा रहता है, इन केस ऑफ इम्पैक्ट द डोर शुड नॉट गेट लॉक्ड। ओके, तो वो भी इन लोगों ने निकाल दिया था। तो ऐसे चैलेंजेस है। इंडिया में ऑपरेट करने के लिए काफी फ्रीडम था, जैसे मैंने आपको इवन एलईडी टीवी के बारे में भी बोला कि इधर पर हम सबको एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी बोल करके चिपका दिया जाता है। सो ये सब एडिशनल रिसोर्सेज में ही आ जाएंगे। वही अगर इधर से कंपनी जब उधर जाती है तो उधर पर वो इस तरह से ये फीचर्स के साथ में ऐसे इतना स्लगिश प्रोडक्ट्स उनको एंट्री नहीं मिलती है, उनके प्रोडक्ट्स उधर के लोकल नॉर्म्स क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, दे हैव टू मॉडिफाई। बट वहीं पर वहां से जब वो लोगों ने इधर पर सेटअप किया, मतलब फोर्ड वगैरह का व्हीकल जब इधर पर आया तो उन्होंने सिर्फ एक कस्टमाइजेशन किया, लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव की तरफ शिफ्ट किया बस, बाकी का सब उन लोगों ने एज इट इज रखा। सो दैट वाज एन एडिशनल रिसोर्स दैट दे हैड टू अप्लाई। क्लियर? Yes, sir. Anything else that you want me to talk about? ज्यादातर चीजें हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। Sir, one more point. Offensive in competitors' home country. हाँ Sorry? सर, So What's last that? wala point. Offensive in competitors' home country. So basically it's about when you get into another country, okay, वहां पर के already local players पहले से ही होते हैं, so how do you still manage that? So that factor also needs to be taken into consideration. अब उसमें आप जैसे रिलायंस ने इधर पर एंट्री किया, पूरा फ्री में बांट रहा है, ओके, बिकॉज इट वाज देयर ऑन होम ग्राउंड, बट वो उधर यूएस में, यूके में जाकर के नहीं कर सकता था, बराबर है? सो यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कंपटीशन इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। आपको पता है मलेशिया में भी, जैसा अपने इधर पे मारुति सुजुकी है ना, उधर पे मलेशिया में भी एक और है, क्या, आई थिंक इट्स कॉल्ड एज प्रोटॉन। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। हाँ, जैसे अपने इधर पर मारुति है, मारुति सुजुकी है, ठीक उसी तरह से मलेशिया में देयर इज अ ब्रांड नेम कॉल्ड एज प्रोटॉन। एंड यार क्या गाड़ी है, रियली मजा आ जाता है, एंड डर्ट चीप। जैसे इधर पर अभी मैं जस्ट ऐसे ही प्रोटॉन कार्स मलेशिया प्राइस लिस्ट मैंने ओपन किया है, प्रोटॉन सागा,
मलेशियन रिंगिट्स 32,800 से लेके 39,800 है, इंटू 17 आप कर दीजिए। 32,800 इंटू 17 कितना होगा? $5,57,600। ओके, सो उसमें आपको ये सब सेडान्स है जो आपको उतने में मिल रही है। इधर पर डू वी हैव एनी सेडान विच वी विल बी एबल टू गेट इट फॉर दैट प्राइस? इवन सबसे सस्ती पहले वो स्विफ्ट डिजायर थी। दूसरा हाँ इसका मिल सकता है, कौन सा? टाटा का। विच वन इज दैट? इंडिका प्लस, ऐसे ही कुछ है ना? अभी तो टेगोर आती है ना सर, टेगोर आती है। बट वो प्राइस कम नहीं है उसका। मैं चीपेस्ट वाले हिसाब में बात कर रहा था। अभी तो उन्होंने जितने भी नए लॉन्च किए हैं सबके प्राइसेस मस्त हैं। यस सर। सो लोकल मार्केट कंपटीशन, अब यही अगर मारुति उधर जाकर के सेटअप करने जाएगा तो उसकी बैंड बच जाएगी। इट विल नॉट बी इजी फॉर देम टू एक्चुअली compete इन दैट मार्केट, वो भी दैट टू विथ अ सेम काइंड ऑफ कंपनी। सर यस, टाटा की आपने चीपेस्ट कार कौन सी बोली? नैनो। अच्छा ओके। बट एक और है ना जो सेडान की अगर हम बात करें तो आई थिंक इट इज टाटा, एक सेकेंड लेट मी, इट्स इंडिका या इंडिगो, ऐसे इंडिगो है शायद। इंडिगो ही है सर शायद। इंडिगो आई थी सर पहले। इंडिगो, टाटा इंडिगो। टाटा इंडिगो that starts from 5.09 lakh to 6.28. ओके, और अगर आप ये प्रोटॉन का अगर आप देखो, if you can just open Google and check this, ओके, इसका टाटा इंडिगो का शक्ल देखो और प्रोटॉन सागा, if you can just check this. Can you see it? हाँ सर देखा। कैसा लग रहा है? अगर सेम 5 लाख वाले ही उस पे आ रहा है, so if you have a choice to buy a Proton Saga and Tata Indica, which one will you go in for? प्रोटॉन सागा। So that very clearly says where do we land up. Okay, so this is what it was, offensive competitors home country. Anything else, or we can go ahead? So we can go ahead. Okay, Yes, sir. great. ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है फॉर सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो हमने ऑलरेडी अभी कवर किया है. व्हेन वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? So we are looking at labor, material, equipment, land, energy, water. Okay, when we talk about market, so आप जितने भी factors हैं उनको आप broadly ये 5 categories में divide कर सकते हो: resources, environmental factors, market, government policies and infrastructure. ओके सर, वो पूरा क्लियर है। यस सर, यस। Now, there are various analytical techniques which we actually use for identifying a facility location. We'll take up a couple of them. ये सारे के सारे इधर पर listed तो हैं, but ये सब आपके syllabus में नहीं है. Every method has got its own advantage and disadvantages at the same time applicability. Okay, तो इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे.
फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, सिंगल फैसिलिटी लोकेशन प्रॉब्लम देख रहे हैं, फैक्टर रेटिंग हम लोग इधर पर ही कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रेविटी लोकेशन प्रॉब्लम वही वो ये है, यू विल सी समवॉट सिमिलर टू दिस, ये मीडियन मेथड के जैसे रहता है, यूक्लिडियन, ओके। और बाकी केस स्टडी बेस्ड मेथड्स होते हैं जो आप यूज करते हो, दोज आर क्वालिटेटिव एनालिसिस बेस्ड एंड नॉट क्वांटिटेटिव. But when we are going to take up factor rating method, that time we will try and include both quantitative as well as qualitative. ठीक है. ब्रेक इवन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा. You guys have already done it, correct? Break even analysis. Yes, sir. है ना? So you will be able to connect with it faster. So we will take up that first. Here you can see, I think I don't need to tell you what are fixed cost and variable costs. आप लोगों को पता है वो सब. हाँ sir. Okay. Yes sir. So if you look at the 4 graphs which are indicated here, one is for location 1, second is for location 2, location 3 and then location 4. अब आप जब उसको cost wise डाल रहे हो, so this is how it is coming up. This is indicating your total cost. This is indicating your total revenue. Normally हम लोग इस तरह से देखते हैं कि भाई cost है, revenue है, और फिर दूसरा आपका break even is when you are able to recover your costs, entire cost, और उसके बाद में आपको सिर्फ variable cost manage करना है. Fixed costs have been taken care of. Correct? That is what is break even. बराबर? Yes sir. So what are the things that you will focus on? कि भाई मेरा break even जितना short हो उतना better है. Yes sir. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा break even जितना short हो उतना better है, तो which is the best facility location? Location 4. Sorry? Location 4. Location 4. So based on that, your location 4 is the best. अब यही अगर मान लो मैं लोकेशन 4 का ये जो टोटल रेवेन्यू वाला चार्ट है, इसको अगर मैं थोड़ा सा स्लोप डाउन कर देता हूँ, ऐसे नीचे की तरफ कर देता हूँ ऐसे, तो क्या होगा? मेरा ब्रेक इवन बढ़ जाएगा. ब्रेक इवन बढ़ जाएगा, बट फिर भी उसके बाद में अगर मैं बोलता हूँ कि उसके कंपैरिजन में, एक सेकंड है, लेट मी, करेक्ट. सो मेरा ब्रेक इवन पीरियड बढ़ गया, बट आफ्टर दिस न्यू लाइन, ओके, नाउ विच वन वुड बी अ मोर लुक्रेटिव ऑप्शन? Same sir. Location 4 only. सेम. करेक्ट. Yes. यहाँ पर ये और ये फिर भी नियर अबाउट है, बट विच वन विल आई प्रेफर? Location 4. अगर Because it is Location 4. जो पॉइंट है इट इज सेम एज दिस पॉइंट, so which one will I prefer? Still location 4. Sorry? तो location 4 ही prefer करेंगे फिर. लोकेशन 4 ही बेटर है. नहीं, मैं इसके लिए ये आपका टोटल रेवेन्यू का ये नया मैंने बनाया हूँ. तो मतलब आप लोकेशन 1 और 4 का ब्रेक इवन पॉइंट सेम ऐसा बोल रहे हो क्या नेक्स्ट वाले? हाँ. फिर लोकेशन 1 मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल हो जाएगा क्योंकि इसका रेवेन्यू मेरे को काफी ज्यादा मिल रहा है. रेवेन्यू वाला लाइन का देखो स्लोप ऊपर है, तो एज आई गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर, आई विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन दैट केस. हाँ राइट. वहाँ Sir, but if you see the total cost, यस, so in this location 3, my gap between total revenue and total cost is the highest, right? करेक्ट. So यहाँ I इधर पर में ये ज्यादा है. So my profitability would be higher, but revenues would be higher on this front. yeah, right, indeed. अब इसमें अगर मुझे
मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने फैक्ट्री सेटअप किया और इसके बाद में मुझे उसको सेल ऑफ कर देने का है, जैसे ही वो एक लुक्रेटिव दिखने लगेगा। तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके बेस पर उसका वैल्यूएशन होगा, करेक्ट? Yes, sir. So then this becomes more lucrative. So आप देख रहे हो जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव बदलते हैं उस हिसाब से आप अलग इसके लिए भी जाओगे। इट्स नॉट ऑलवेज कि बस मेरा लो ब्रेक इवन होगा तो चलेगा। और यहाँ पर अगर आप ब्रेक इवन के बाद में जब इसको आप सेल ऑफ करने जा रहे हो तो दिस बिकम्स मच मोर लुक्रेटिव। ओके, सो टाइम की बात है। सर लोकेशन 3 में भी रेवेन्यू बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू यहाँ पर ना, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर लोकेशन 3 में, करेक्ट। So in that case even this becomes a very lucrative option. So आप ये देखते हो कि what is the volume of operation that you are going to operate upon or the volume of operation that you are actually operating on. So volumes becomes another important factor. So आप इस तरह से भी identify कर सकते हो. Okay, now what we have done is we have just taken up an example, okay, wherein fixed cost for a facility for a location. एक मिनट, मेरा माउस किधर गया? हाँ, fixed cost is indicated for location A, location B as well as location C. ये आपके fixed cost हो गए. Then variable cost at those places are also indicated. अब आप देखिए जहां पर आपका फिक्स्ड कॉस्ट काफी हाई है वहां पर वेरिएबल कॉस्ट काफी कम है। सो मतलब वंस यू आर एबल टू रिकवर दिस, ओके, उसके बाद में आपका प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बट यहां पर आपका प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं बढ़ने वाला है, करेक्ट? सो बट फिक्स्ड कॉस्ट कम है। नाउ हाउ डू आई आइडेंटिफाई which one will be a better choice? So that is dependent on what is the capacity at which I am going to operate. Okay, so अभी इधर पर एक इन्होंने बोला है कि the expected annual production volume is 2,50,000 units. अब आप this is nothing but actually demand, market demand. अब ये मार्केट डिमांड जब आप इनिशियली शुरू करते हो तो आप मार्केट डिमांड देख करके उस हिसाब से आइदर यू स्टार्ट और यू गो विथ अ फोरकास्टेड डिमांड कि भाई मार्केट इतना परसेंट से ग्रो होगा तो आज से 4 साल बाद में भी स्टिल माय फैक्ट्री शुड बी रेलेवेंट। तो आप उस हिसाब से उसका कैपेसिटी डिफाइन करते हो और उसी हिसाब से पूरी फैक्ट्री डिजाइन की जाती है। एम आई क्लियर अप टू दिस? यस सर। Yes, sir. तो अब इसमें क्या करोगे, हाउ विल यू वर्क इट आउट फॉर फैक्ट्री, फॉर टोटल कॉस्ट आप ले लोगे फॉर 2,50,000 यूनिट्स। सो यहाँ पर व्हाट यू विल डू इज मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। Yes. तो जिसका टोटल कॉस्ट कम होगा वी विल गो फॉर दैट। करेक्ट। तो जिसका भी टोटल कॉस्ट कम रहेगा फॉर 2,50,000 यूनिट्स, दैट इज व्हाट वुड बी प्रेफर्ड। सो सिंपल यही कैलकुलेशंस किया है, फैसिलिटी ए प्लस 250 इंटू योर 2,50,000 यूनिट्स और उस हिसाब से आपने कर लिया। नाउ आई हैव ड्रॉन दिस चार्ट आल्सो फॉर यू, ओके, इसी से पूरा का पूरा ये डेवलप किया हुआ है। सो यहाँ पर इफ आई लुक एट, इफ माई ऑपरेटिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम्स आर से लेस देन 150,000 यूनिट्स, if I say if it is less than 150,000 units, so that means which facility will be good for me? ये total cost का chart. सर क्या रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? If I am going to operate at a production volume of less than 150,000 units, that means I am talking about this point. So site A would be preferred. Site A will be preferred because your total cost is the least. What about
between 150 to 250? Side B. Side Sorry, B. Sorry. Side B becomes best because it has the lowest cost. And what about less than 350? That means 250 to 350,000 units. Side C. B only, Sir, B. है ना? But what after 350,000 units? Then side C, sir. It's C. Correct? So this is how you actually decide what would be your production volumes and accordingly which site you should select for facility location. Am I clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, आप लोगों को ग्राफ वगैरह तो बनाने को आता ही होगा. आता है, sir. Yes, sir. Ask- To teach you those things. Excel में भी ये सब कुछ easily बन जाता है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. इस तरह के न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लीजिएगा, करिएगा in your assignments too. Okay, and this is what would be of most importance for me. Your analysis, your recommendation. Okay, 250 units के लिए yes, side B is the best, but बाकी इसके लिए क्या? So when side B is good, when side C is good, and so on. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Take up one more. थोड़ा सा एक दूसरा मेथड ले लेते हैं बिकॉज ये सब क्विकली किया जा सकते हैं. ओके, और कैलकुलेशंस भी मैं आपको बताते जाऊंगा. ये इधर पर आई थिंक इज देयर एनी कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस? ये भी सब सामने दिखाया है. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. सर वो जो 1,50,000 यूनिट्स है मतलब 150 हाँ. के लिए रहेगा ना उधर? हाँ, ये 150 के इधर पर आएगा. हाँ, ओके ओके ओके. 150 के लिए साइट ए. यस यस समझ ठीक है, गया. क्योंकि पर आपका कॉस्ट लो है. बट आप एग्जैक्ट 150 पर देखोगे तो यू कैन गो फॉर साइट ए और साइट बी. हाँ राइट. बट जब आप सेटअप करोगे और आपको पता है कि मिनिमम डिमांड 150 है एंड इट कैन गो बियॉन्ड, देन यू विल नॉट गो फॉर साइट ए, यू विल गो फॉर साइट बी. यस सर राइट. ठीक है, so this is how you take your call. Any doubts here? नो सर. Okay. The other method is which is a single facility location problem itself, but it is called as center of gravity technique, also referred as centroid method in some of the books. Okay. अब इसमें क्या रहता है कि इसमें आपको बकायदा वो जो भी पर्टिकुलर फैसिलिटीज है उनके लोकेशंस दिए हुए हैं और आपको मालूम करना है कि आप इसके बीच में आप कहां पर आपको सेटअप करना चाहिए, so that you are equidistant. Now when we are talking about equidistant, so that you can service all of them. For example, मुझे मान लो ये मेरे 4 आउटलेट्स हैं, हाँ, रिटेल स्टोर्स समझ लीजिए. ठीक, अब इसके लिए मेरे को एक वेयरहाउस सेटअप करना है, तो वो कहां पर सेटअप करूं so that I can cater to all of them? मिडल बीच में, तो मतलब डिस्टेंस सबका इक्वल हो. के लिए हम बोलेंगे कि इधर बीच में डाल दो. करेक्ट, सबके लिए हो जाएगा. बट राइट. अगर इधर पर बीच में मैं डालता हूं, ओके, मेरा इधर पर का लोड या डिमांड कम है और मुझे ज्यादातर टाइम इधर ही पर बार बार ज्यादा जाना पड़ता है. सो then should I be setting it up here or should I be setting up more closer to this? More closer to those locations. Correct. So Yes, sir. this is general common sense how we can actually identify. Now यहाँ पर मुझे कहाँ पर उसको सेटअप करना चाहिए? So that is given by some method, center of gravity method,
जो हम लोग यूज करते हैं। अभी आप में से कितने लोगों ने बुक को ऐसा उंगली में घुमाया है क्या? हाँ करते हैं सर। ना? हाँ सर। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वो उंगली उधर पे रखने का किधर पे है, सो दैट यू आर एबल टू रोटेट इट प्रॉपरली? बैलेंस देखते हैं, मतलब किधर कैसे प्रॉपरली बैलेंस हो रहा है, कौन से लोकेशन। एक्चुअली वो बराबर से जहां पर बैलेंस हो रहा है उधर पर रखेंगे तो उसे बैलेंस कर सकते हैं, बट रोटेट नहीं कर सकते हैं। ट्राई करके देखा है? सर हुआ नहीं कभी आज तक। आप हुआ नहीं उसको है सर। बराबर सेंटर में रखोगे तो आप उसको रोटेट नहीं कर पाओगे, बट थोड़ा सा ऑफ रखते हो तो आप उसको रोटेट कर सकते हो। और अगर पहले से रोटेट मतलब बैलेंस करके फिर आप रोटेट कर सकते हो दूसरे हाथ से, बट कुछ लोग दूसरे हाथ से नहीं, एक ही हाथ से उसको बैलेंस करके रोटेट भी करते हैं। वो नहीं ट्राई किया सर। ठीक है, एनीवे बाद में एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, यू विल come to know. Okay, so same logic is actually gets applied here also in your real life situations. Okay, we are taking up a question. The Burger Doodle restaurant chain purchases ingredients from 4 different food suppliers. The company wants to construct a new central distribution center to process and package the ingredients before shipping them to their various restaurants. The suppliers transport ingredient items in 40-foot truck trailers, each with a capacity of 38,000 pounds. The locations of 4 suppliers, A, B, C, and D, and the annual number of trailer loads that will be supported to the distribution center are shown in the following figure. Ye raha aapka. Using the center of gravity method, determine a possible location for the distribution center. So इसमें आप क्या करते हो? You also take into consideration the weight. That means the load that they are going to deal with. So आपने हर एक लोकेशन को उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया. सो इफ यू लुक एट फैसिलिटी ए, द कोऑर्डिनेट्स आर along the x-axis 200 and along the y-axis also 200, and the load that is expected is 75 trips. सर वो माइल्स में क्या है? x माइल्स और y माइल्स. माइल्स ऑन बोथ द एक्सेस. वो जो नंबर्स दिए 200 miles distance from one reference point. Okay. And 75 is the number of तो ये रेफरेंस पॉइंट है, वहां पर से along the x-axis 200 और along the y-axis 200, ये लोकेशन है उसका. ओके. और 75 ट्रिप्स है ना, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ना. हाँ. ओके. तो ये लोकेशन इज नथिंग बट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ओके सर. ठीक है. सो अब न्यूमेरिकली जब करते हैं तो हम लोग along the x-axis y-axis वैसे करके ले लेते हैं, बट नॉर्मली इट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. ठीक है. और प्रैक्टिकली आप इसको इवन ये भी नहीं लेते हो क्योंकि कहीं पर भी स्ट्रेट रूट नहीं होते हैं. करेक्ट. तो स्ट्रेट रूट नहीं होते हैं तो आप वैसे भी नहीं करते हो. तो ये दिस इज अ रफ कट मेथड. इट विल ओनली जस्ट गिव यू एन रफ एस्टिमेट. Okay, this will not give you a fair estimate. So आप इसमें क्या करते हो? Along the x-axis पहले आप चेक करोगे and then you will check it along the y-axis. So along the x-axis के लिए आप क्या करोगे? x का coordinate into the load. तो facility A के लिए x coordinate into load plus x coordinate of facility B into load. Can you see? 100 into 105. तो आप इसी तरह से चलोगे. पहले A का ले लिया, so 200 into 75, फिर B लिया आपने 100 into 105, फिर C लिया आपने 300 into 135, फिर D लिया 500 into 60. करेक्ट. सबका सम टोटल divided by the total load that needs to be managed from the central distribution center which you are going to set up. So total load that it has to manage is
this 75 plus 105 plus 135 plus 60. You get it as 238. So that means जो आपका नया फैसिलिटी आएगा वो 238 मतलब somewhere इसके आसपास में. Correct? Now similarly you will do it for Y. So Y के लिए भी Y में 200 into 75 plus 500 into 105 plus 600 into 135 plus 300 into 60 divided by total load 75 plus 105 plus 135 plus 60. It gives you 444. 444 मतलब somewhere here. Correct? Right, sir. अब इनको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं और इधर पर से भी ठीक इसी तरह से so I come to a point here. This becomes where I would like to locate my facility, that is distribution center. अब आप देखिए लॉजिकली वो अपने आप वेट्स को लेकर के इट हैज प्लेस्ड इटसेल्फ मोर क्लोजर टू दिस. अब मैं क्या करूंगा, इसके आसपास में ये मेरे को रफ लोकेशन मिल गया है, ये पर्टिकुलर एरिया को स्टडी किया जाएगा. वो उधर पर जो सबसे चीपेस्ट कॉस्ट टोटल कॉस्ट के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग कॉस्ट आप देखोगे, वहां पर आप सेटअप करोगे. अब ये इतना सा हो सकता है जिसमें भी नवी मुंबई, तो नवी मुंबई में किधर? ओके, आर वी क्लियर? समझ गया. ठीक है. सो however it should be kept in mind that these coordinates are based on straight line distances and in a real situation actual roads might follow more circuitous routes. तो आपको ये रफ एस्टिमेट सिर्फ देता है. अब अगर मान लो इधर पे पूरा जंगल है, तो जहां पर जो आपने जगह आइडेंटिफाई किया, तो या खाड़ी एरिया है, तो कैन यू सेट अप? नो. No, sir. This only just gives you a rough estimate. Are we clear up to this? Yes, sir. Yes, sir. इसके आगे का we will take up in the next session, क्योंकि अपना टाइम भी हो